Last Sunday I was teaching you something regarding marriage. पिछले सप्ताह हम विवाह के विषय कुछ बातें सीख रहे थे। Now marriage is a very very important thing of your life. और विवाह जो है आपके जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण एक घटना है। There are only two important decisions in any human being's life. One of them is marriage. और किसी भी इंसान के जीवन में केवल दो ही बहुत अधिक महत्वपूर्ण सवाल है, उनमें से एक विवाह है। So that's why it is important that we know the principles which work in a marriage before you get into that. और इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप इसमें बढ़ने से पहले, विवाह में प्रवेश करने से पहले कई महत्वपूर्ण बातों को आप जान ले। Okay, your life actually starts not on your marriage, it starts on your birth. और आपकी जिंदगी जो है वो विवाह जिस दिन आपका होता है उस दिन नहीं, बल्कि जिस दिन आपका जन्म होता है वो शुरू उस समय होता है। Yeah, your life begins as a single. आप जब आपका जीवन जो है वो उसकी शुरुआत अकेले बनकर होता है। So if you are disappointed or if you are not a right type of a person as a single, you can never become happy as a couple. और अगर अकेले रहकर आप कभी खुश नहीं रह पाए तो आप जब विवाह कर लेते हो तभी भी आप खुश नहीं रह पाओगे। So if you have missed my last week's message, I want you to go back and listen to that so that you can get to know more about how you can have a good singular life. अगर पिछले सप्ताह का संदेश जो है वो आपने ध्यान से सुना नहीं है, मैं चाहता हूं कि आप वापस लौटे, आप वापस जाकर आप इस संदेश को जरूर सुने। Okay? So today I am going to continue. आज हम आगे बढ़ेंगे। Some principles which you have to utilize when you are finding a spouse. कुछ सिद्धांतों का आपको इस्तेमाल करना है जब आपके जोड़ीदार को आप चुनते हो। Okay? First of all, we should understand marriage starts, your marriage starts with you. आपको इस बात को समझना है कि आपका विवाह जो है वो आप ही से शुरुआत होती है उसकी। It doesn't start with the other person. वो दूसरे व्यक्ति से शुरुआत नहीं होती It है। always starts with you. वो हमेशा आप ही से शुरुआत होती है उसकी। Consider you need a job. मान लो आपको एक नौकरी की जरूरत है। You are going to a job consultant. आप एक जॉब देने वाले कोई संस्था में आप जाते हो। What is the first question he is going to ask you? पहला सवाल वो आपसे क्या पूछता है? If you say I need a job, जब आप कहते हो कि मुझे कोई नौकरी की जरूरत है, he will ask you what is your educational qualification? तो वो आपसे पूछता है कि आपका शिक्षण कहां तक हुआ है, How many languages you can talk? कितनी भाषाएं आप बात कर सकते हो। This is what he will ask. यही वो आपसे पूछता है। Consider you say I need go to a real estate agent and say hey I am going to buy a house. मान लो कि आप कोई रियल एस्टेट एजेंट के पास जाते हो और आप बोलते हो कि मुझे एक घर खरीदना है। First question what he will ask? पहला सवाल वो आपसे क्या पूछेगा? What is your budget? आपका बजट कितना है? Which locality you want? कौन से जगह को आप चाहते हो? These are the questions he will ask you. ये वो सवाल है जो आपसे वो पूछेगा। It doesn't depend upon the real estate, it depends actually upon you. What real estate you actually वो want. रियल एस्टेट एजेंट जो है उस पर निर्भर नहीं है, बल्कि आप पर निर्भर होता है कि कौन सा घर आप खरीद पाओगे। So in the marriage also, it actually begins with you. तो विवाह में भी ये शुरुआत आप ही से होता है। What sort of a person you are? किस प्रकार के व्यक्ति आप हो। Okay, you have to find someone in the same frequency. That's how it should be. और आपको ऐसे किसी व्यक्ति को खोजना है जो आप ही के फ्रीक्वेंसी में हो। When you don't have any purpose in your life, what will you do in your marriage? जब आपके स्वयं के जीवन में कोई लक्ष्य या उद्देश्य नहीं है तो अपने वैवाहिक जीवन में क्या करोगे? You don't have any character in your life, what you will do in your marriage? जब आपके व्यक्तिगत जीवन में आपका कोई चरित्र नहीं है तो विवाह में आप कैसा बनाओगे? Definitely, see, we all come from families, you know. निश्चित तौर पर हम सारे किसी न किसी परिवार से आते हैं। Many, I always connect with young people, you know, I observe them. Yesterday I was observing a young lady, you know, how she was talking to her father, or a young boy, how he is talking. So I always observe, you know, when you cannot live properly with your own family members, what you will do as a wife or a husband? और मैं हमेशा जवानों के साथ रहता हूं, इसलिए मैं कई बार उन्हें ध्यान से देखता हूं, परखता हूं। कल ही मैं देख रहा था एक लड़की अपने पिता से किस प्रकार बात कर रही थी, कोई लड़का होता है वो अपने माता से कैसे बात करते हैं, अपने परिवार में वो किस तरह व्यवहार करता है।
Consider you don't respect your own daddy. How you will respect your father-in-law? मान लो आप अपने ही पिता का आदर नहीं करते तो अपने ससुर का आप कैसे आदर कर पाओगे? How you'll ये you कैसे won't कर honor. पाओगे? आप नहीं आदर करोगे। When you don't honor your father, you won't honor your pastor. जब आप अपने पिता का ही आदर नहीं करते तो आप अपने पासबान का भी आदर नहीं You कर will not पाओगे। honor your teacher. आप अपने शिक्षक का भी आदर नहीं कर You will पाओगे। not honor your principal. आप अपने प्रिंसिपल का भी आदर नहीं कर You will पाओगे। not honor your boss. आपके बॉस जो है उनका भी आदर नहीं कर पाओगे। Then your boss will depromote you. और फिर आपका बॉस आपको डिप्रोमोट करता है, He will reduce your salary. वो आपकी तनख्वाह कम कर देता है। Then you will not even realize. You will be angry with your boss. और आपको ये एहसास भी नहीं होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, आप गुस्से होंगे अपने बॉस पर। It doesn't begin with your boss. It begins with you. और ये आपके बॉस से शुरुआत नहीं होती है बल्कि आपसे होती है। Very, very important. ये बहुत महत्वपूर्ण है। Who you are. आप कौन हो? Today, many people think, they don't worry about themselves. They are worried about the other person. Oh, और- कितना कमाता है? और आज कई सारे लोग अपने आप से वो चिंता नहीं करते, अपने आप के विषय में चिंता नहीं करते, बल्कि ये सोचते कि वो कितना कमा रहा है। तुम कितना कमाता है? तुम कितना कमाते हो? Many people, they are all the time bothered about what I will get. Huh? कई बार लोग केवल ये सोचते हैं कि मुझे क्या मिलेगा इसमें। Think about what you will give. ये सोचो कि आप क्या दे सकते हो। What can you give? आप क्या दे सकते हो? As a single, you are a useless single. अगर What आप- you will be useful जब आप as a अकेले couple? जब अकेले होते हो तब एक बेकार व्यक्ति का जीवन आप बिताते हो, तो आपकी शादी हो जाएगी तो कैसे आपका कोई फायदा होगा? Your mother and father is is unhappy about you. What you will go and do your सास और ससुर के पास? अगर आपके माता पिता आपसे नाखुश है तो आपके सास ससुर कैसे खुश रहेंगे? My friends, मेरे दोस्तों, it doesn't begin with your partner, it begins with you. ये आपके जोड़ीदार से शुरुआत नहीं होती है बल्कि आपसे इसकी शुरुआत होती As है। a single, who you are. अकेले जब Very आप हो important. तो आप कौन है, आप कैसे हो? Many people are unfit to be married. कई लोग विवाह करने के योग्य ही नहीं है। If you marry that person, you are going to suffer in your life. अगर आप उससे विवाह करते हो तो अपने जीवन में केवल पीड़ा ही सहोगे। As a single, you can be better. अकेले जब आप हो तभी आप बेहतर रहोगे, But as a couple, you will not be better. लेकिन जब अगर आप की शादी हो जाती है तो आपका जीवन अच्छा Good नहीं marriage होगा। is not luck. और Many अच्छा people are विवाह जो thinking- है ये कोई भाग्य से नहीं मिलता है। Good marriage is lucky. He is very lucky to get a good husband, और She कई is लोग ये lucky, कहते हैं and कि she is lucky, he is lucky. They got good husband, good wife. और कई लोग ऐसे बातें करते हैं कि इसका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि इसको एक अच्छा पति मिला या अच्छी पत्नी मिली। Nobody is lucky. कोई भी ऐसे कोई सौभाग्य लेकर नहीं आता Yeah, है। nobody is lucky in this. You can never be lucky in your marriage. और आपके विवाह में कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आपका भाग्य बहुत अच्छा था तो आपको मिल गया। Many girls are dreaming. कई लड़कियां ये सपना देख रही है कि मेरे महाराजा कभी हाँ? आने वाले हैं, मुझे मर्सिडीज बेंच में लेके जाएगा. Please understand these things. इन बातों को आप समझिए। You have to become someone as a single. आप जब अकेले होते हो तो आप कोई ना कोई बन पाए। Marriage is not for the boys and the girls. और कोई लड़के या लड़की के लिए विवाह नहीं है। When the first marriage happened, God said, "Let man, it's for men." और who are जब पहला- well-formed men. जब पहला विवाह हुआ तब परमेश्वर ने कहा अब आदमी का अकेला होना, एक आदमी एक पुरुष का विवाह होता है, Listen. कोई लड़के का नहीं। Genesis chapter 2, उत्पत्ति दूसरे अध्याय को देखेंगे verse 24. और 24वां वचन। Therefore, a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and they shall become one flesh. और इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक तन बन That's what the जाएंगे। Bible says. ये बाइबल कहता है Men can marry. केवल पुरुष ही विवाह कर सकते हैं, Boys cannot marry. लड़के विवाह नहीं कर सकते। Yeah, you can't marry a boy. आप कोई लड़के के साथ शादी नहीं कर सकते। Okay? Some of the principles of marriage is all put here and there in the Bible. और बाइबल में कई स्थानों पर विवाह के कई सिद्धांत के बारे में लिखा हुआ है। Okay, the first principle, it comes from Genesis chapter 2, verse 23. उत्पत्ति 2:23वें वचन में पहला सिद्धांत लिखा हुआ है। Adam said, "This is now bone of my bones
and flesh of my flesh. She shall be called a woman because she was taken out of man. और आदम ने कहा कि अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, सो इसका नाम नारी होगा. See, here Adam is saying a very important principle that the wife or the husband comes from the same stock. और इस पे आदम बहुत ही महत्वपूर्ण एक सिद्धांत से बात करता है कि उसी जोड़े में से वो आदमी या औरत निकलता है. He's saying she is the bone of my bone and flesh of my flesh. ये कहता है कि मेरे हड्डियों में का हड्डी और मेरे मांस का मांस वो है. See, many times, your partner should come from the same stock from where you belong to. और कई बार जो आदमी या औरत उसी जोड़े में से आना चाहिए जहां से आप आए हो, उसी स्थान से आने चाहिए जिस जोड़े में आप बनाए गए थे. What is your stock? और आपका जोड़ा क्या है? You come from which stock you are from? आप किस जोड़े से आए हो? What is your stock? You need to know that. और आपको ये जानना है कि आप किस भंडार से आए हो. Consider you come from a religion. मान लो आप किसी भी धर्म से आए हो And you see, hey, I come from that religion. और आप कहते हो कि मैं इस धर्म से आया हूं. Take a spouse from that religion because that is your stock. और आप उसी धर्म से आप अपने जोड़ीदार को चुने क्योंकि आप उस भंडार से आए. When I came to Jesus, जब मैं यीशु मसीह में आया, I left my religion. मैंने अपने धर्म को छोड़ा. I left my race. मेरे जात को छोड़ा. I left my language. मेरे भाषा को छोड़ दिया. I left my जात. और मेरे सारे जाति के लोगों को छोड़ दिया. Nothing to do with any of these four. इन चारों चीजों से मेरा कोई लेन देन नहीं था. I come from a stock called the family of God. मैं ऐसे एक भंडार से आता हूं जिसे कहा जाता है कि परमेश्वर का परिवार. I took my wife from that stock. मैंने उसी भंडार से अपनी पत्नी को चुना. The other thing doesn't matter for me. और दूसरी सारी बातें मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती है. You be careful from which stock you belong to. You take your spouse from that stock. आप ध्यान से रहे कि आप कौन से भंडार से आए हो, उसी भंडार से आप अपने जोड़ीदार को चुने. See, if you marry someone from another stock, आप किसी और भंडार से किसी व्यक्ति के साथ आपका विवाह होता है, you cannot like their culture. आप उनकी जो संस्कृति है उसको पसंद नहीं करोगे. You understand what I'm saying? आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? Today many people they just चेहरा देख के, पैसा देख के मर रहे हैं. Don't die, live. आप मरिए नहीं, जिए. God wants you to live. Tell your neighbor you need to live. अपने पड़ोसी से कहे कि आपको जीना है. हाँ? शादी करके रोने के लिए शादी किया क्या तुम? शादी किसके लिए करता है? खुशी के लिए. तुम खुश नहीं है तो तुम बराबर नहीं है. You marry a girl from that your stock. आप ऐसी एक लड़की से विवाह करें जो आप ही के भंडार से आए हों. Which stock you come from? I don't know. आप Which कौन से stock you भंडार come से from? आए हो मैं नहीं जानता. एक इसका स्टॉक मैंने मुझे क्या मालूम? अच्छा दिखता है, अंदर क्या है किसको मालूम? Parents, माता पिता, young boys and girls, जवान लड़के और लड़कियां, you listen to me. आप ध्यान से मेरी बात Don't make a सुने. mistake. आप ये गलती नहीं करना. You marry someone from another culture, then you give गाली to that culture. What is the use? आप किसी और संस्कृति के लोगों के व्यक्ति के साथ आपका विवाह होता है और फिर उसी को आप गाली देते हो, तो इसका क्या फायदा होगा? No, it is wrong. ये गलत बात होगी. If you marry them, you accept them. अगर आप उनसे विवाह करते हो तो आप उन्हें स्वीकारते हो. Yes. Settle all these score before you get married. आपका विवाह होने से पहले इन सारी बातों को आप सुलझाएं. Consider, you think your caste is, see some people come from a particular community caste and they think that is the greatest caste in the और world. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जात पात में मानते हैं और जिनको लगता है कि उनका ही जात जो है सबसे श्रेष्ठ है. Marry in that.
तो आप उन्हीं में से विवाह करें। हाँ, वही जाति में तुम शादी करो। Are you with me? क्या आप मेरे साथ हो? Yes. Next. Amos 3:3. आमोस 3:3। Can two walk together unless they are agreed? यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत ना हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? Can you walk together? क्या आप साथ चल पाएंगे? Huh? My grandfather and grandmother are very sweet couple. My grandfather. मेरे दादा और दादी बहुत ही मधुर ऐसे जोड़े हैं। Huh? They walk in a particular fashion. वो एक अलग तरीके से वो साथ चलते हैं। My grandmother walks in the front. You know where that gate is? There. My grandfather walks here. और मेरी दादी जो है वो एकदम वैसे वहां पर चलती है और मेरे दादा जो है वो यहां पर चलते हैं, इतनी दूरी बनाए रखते हैं। So I used to ask him why Pati is walking there. तो मैं हमेशा पूछता था कि दादी इतनी आगे क्यों चल रही है? He won't. I don't know what that means. मैं नहीं जान। Huh? It's a culture. ये एक सांस्कृतिक बात है। It's not the culture in my house. मेरे घर में ऐसी संस्कृति नहीं है। मेरा next road. Then I knew it is prevalent in my cities and my villages. और मैंने ये समझा कि मेरे जो गांव और शहर में है वहां के लोग इसी प्रकार वो चलते हैं। But here it says, if you cannot walk with the person, how can you be agreed? और यहां पर लिखा है अगर आप साथ में सहमत नहीं होंगे तो वो दो लोग साथ में किस प्रकार चल पाएंगे? Can you walk with this woman or with this man the rest of your life? क्या आप इस औरत या पुरुष के साथ अपने सारी आयु साथ मिलकर चल पाएंगे? When you cannot walk together, how can you live together? अगर आप साथ चल ही नहीं पाते हो तो साथ में कैसे जियोगे? See, when you walk together, what happens? जब आप साथ चलते हो तो क्या होता है? See, there is a transfer happens when you walk together. और यहां पर एक बहुत बड़ा ट्रांसफर यहां पर इनके बीच होता है। Let's read हम पढ़ेंगे Proverbs नीति वचन 13, 13वां अध्याय 13:20. 20वां वचन। 13:20. Proverbs 13:20. नीति वचन 13वां अध्याय 20वां वचन। It says, he who walks with wise men will be wise. बुद्धिमानों की संगति में चलने वाला व्यक्ति भी बुद्धिमान बन जाता है। What happens क्या when होता है? you are not a wise man, but you are walking with a wise man? आप शायद से बुद्धिमान व्यक्ति नहीं थे लेकिन किसी बुद्धिमान व्यक्ति के साथ आप चल रहे थे। The wisdom of a wise man get transferred when you walk with him. और उस बुद्धिमान व्यक्ति की जो बुद्धि थी, जो ज्ञान था, वो आप में भी आ जाता है। Can you walk together? क्या आप साथ चल पाएंगे? Can you converse a beautiful conversation with the person? क्या आप एक सुंदर कोई बातें आप उस व्यक्ति के साथ कर पा रहे हो? See, is there a transfer between you? क्या यहां पर कोई बदल आ रहा है? These are the points you need to look into before you ever get into marriage. और विवाह में प्रवेश करने से पहले इन बातों को आपको जांचना है, परखना है। 2 Corinthians chapter 6 verse 14. दूसरी कोरिन्थियों की पत्री 6वां अध्याय 14वां वचन। Do not be unequally yoked together with unbelievers. अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जूतो। See, very clear. A believer cannot marry an unbeliever. ये साफ लिखा गया है, एक विश्वासी एक अविश्वासी के साथ विवाह में प्रवेश नहीं कर सकता। Not a person who calls himself a believer. ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो अपने आप को विश्वासी पुकारता है। A real believer at heart cannot live with an unbeliever. एक सच्चा विश्वासी अपने हृदय से वो सच्चा विश्वास करता है, वो एक अविश्वासी के साथ विवाह नहीं For कर सकता। example, I want to give tithe. I want to give 1/10 of my income to the fellowship in which I am going to. मान लो कि मैं अपना दशमांश जिस संगति में मैं जाता हूं वहां पे मैं देना चाहता हूं, And there is no food to eat in the house. और घर में कुछ खाने के लिए भोजन नहीं है। How will my wife agree to that? मेरी पत्नी कैसे उस बात से सहमत होगी? अरे खाने के लिए पैसा नहीं था, क्या उसको पैसा देने का तुम? वो आदमी
Huh? Already he is coming in a Mercedes Benz. You want to give the money to that fellow? There is a big fight in the house. और घर में ही ये बड़ा लड़ाई झगड़ा हो जाता है। A believer cannot marry an unbeliever. एक विश्वासी अविश्वासी के साथ विवाहित नहीं हो If सकता। you are a believer, अगर आप विश्वासी हो, otherwise it's okay. वरना कोई फर्क नहीं पड़ता। Otherwise, why to give tithe? वरना दशमांश क्यों देना है? Do not be unequally yoked. और असमान जुए से न जूतो, Because there is no yoke. You can't yoke with an unbeliever. और ऐसे एक जुए में आप प्रवेश नहीं कर सकते अविश्वासी के साथ। You marry an unbelieving wife. आप एक विश्वास न करने वाली पत्नी स्त्री से आप विवाह करते हो, And she will say, give me gold jewels. और वो रोज कहेगी कि मुझे सोने के कोई जवाहरात दो। Huh? So that fellow doesn't have the money. और उस व्यक्ति के पास कोई So पैसा he ही has नहीं to है, go and cheat his company to bring the gold jewel. तो वो किसी और की हत्या करने की जाता है, चोरी करता है, और फिर वो यहाँ पर सोना कमाने की कोशिश Many करता है। men become thieves कई सारे पुरुष जो है वो ऐसे चोर बन जाते हैं because of their wives. उनकी पत्नियों के कारण। Please understand इस this. बात को समझे। Many men are thieves in their offices और कई आदमी जो है, पुरुष जो है, अपने दफ्तरों में वो चोर हैं, because there is no conscience with his wife. क्योंकि उनकी पत्नी के साथ उनका कोई भी ऐसा मनोभावना सही नहीं That's है। why it says, don't be unequally yoked with और unbelievers. इसलिए यहाँ पर लिखा है कि अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जूते। What fellowship righteousness has with lawlessness? और धार्मिकता का ऐसे दुष्टता के साथ उनकी संगति है। What communion light has with darkness? और ज्योति का अंधकार के साथ क्या संगति है? See, a girl is either light or darkness. एक स्त्री जो है वो या तो वो ज्योति है या तो अंधकार है। A boy is either light or darkness. एक पुरुष जो है या तो वो अंधकार है या तो वो ज्योति है। You can't just marry darkness and bring her to light. आप ऐसे किसी अंधकार से विवाह करके उसमें ज्योति लाएंगे, ऐसे नहीं सोच सकते। No. नहीं। It will become, many marriages, because it is not done properly, it becomes contentious marriage. और कई सारे विवाह क्योंकि वो सही तरीके से नहीं किया जाता है, वो ऐसे ही बड़े मलयुद्ध में, लड़ाई झगड़े में बीतते जाते हैं। In my hometown, there were two very good believers. They और got married. मेरे गांव में दो ऐसे बहुत अच्छे विश्वासी थे जिनका विवाह होता है। Huh? Wife talks in tongues, the husband doesn't talk in tongues. और पत्नी जो है वो अन्य भाषा में बात करती थी, लेकिन पति नहीं करता था। Okay, you know what happened? क्या आप जानते हो क्या हुआ? It ended in divorce. और उनका तलाक हो जाता है। It ended in divorce. उनका तलाक हो जाता है। Please understand these things. इस बातों को आप समझे। The point of the problem was talking in tongues. और उनकी परेशानी उनके बीच यही थी कि वो अन्य भाषा में बात नहीं कर रहे थे। Please understand these things. इस बातों को समझे। Today, many people, for the heck of getting married, they get married. और आज कई लोग केवल मुझे विवाह करना है इसलिए वो कर लेते हैं, They can't walk together. वो साथ चल भी नहीं पाते। If you can't agree with your wife, your husband, how can you walk with him or her? अगर आप अपने पति या पत्नी के साथ सहमत ही नहीं हो पा रहे हो तो उनके साथ कैसे साथ मिलकर चलोगे? Please understand these things and before you jump into this. Let's turn to Proverbs 19:13. नीति वचन 19वां अध्याय 13वां वचन को देखेंगे। 19:13. मूर्ख पुत्र पिता के लिए विपत्ति ठहरता है और पत्नी के झगड़े रगड़े सदा टपकने के समान होता है। Why it says like this? A contentions of a wife or a continuous dripping. और एक पत्नी का झगड़ना, लड़ना झगड़ना, ये एक हमेशा रहने वाले एक टपकने के समान होता है। Very important. You deal with these contentions. और ये जो लड़ाई झगड़े, इसके साथ पहले ही सही व्यवहार करना है। Continuously drip only. नहीं तो वो निरंतर वो आपके जैसे मान लो छत से टपक रहा हो पानी, वैसे हो जाता है। Many marriages become contentious marriages. और कई सारे विवाह जो होते हैं इसी प्रकार लड़ाई झगड़े में बीतते जाते हैं। So be careful when you start your marriage. और तो बहुत संभल कर रहे जब आप अपनी शादी या वैवाहिक जीवन शुरू करते हैं, Because happy marriage
your desire and vision, so it has to be happy all the time. तो क्योंकि जब आप एक खुशहाल विवाहित जीवन आप ऐसे आशा करते हो तो ये आपको एक निर्णय लेकर ही आगे बढ़ना पड़ेगा. Okay, let's turn to the next word. There are some principles you need to follow when you choose your spouse. जब आप अपने जोड़ीदार का चुनाव करते हो तो कुछ सिद्धांतों का इस्तेमाल आपको करना पड़ता What है. is the number one quality? सबसे पहला जो गुण है वो क्या होना चाहिए? Okay, of the spouse you are going to marry. जिस व्यक्ति से आप शादी करने वाले हो उसका सबसे पहला गुण क्या होना And चाहिए? what is the number one quality? You need to concentrate about yourself. और ऐसा पहला गुण क्या है जो आपको अपने आप में बनाना है इस विवाह करने से पहले? Huh? See, the number one quality of a man or a woman is the fear of God. और सबसे पहला गुण एक आदमी या एक औरत में यह होना चाहिए कि वो परमेश्वर का भय मानने वाले The हो. first thing you will see in a girl is, does she fear God? और सबसे पहली बात जो आप एक लड़की में देखोगे वो ये है, क्या वो परमेश्वर का भय मानती है? What you will see in a man, does he fear God? एक आदमी में आप क्या देखोगे, क्या ये परमेश्वर का भय मानता है? When she doesn't fear God, she cannot be a good wife. जब वो परमेश्वर का भय नहीं मानती तो वो एक अच्छी पत्नी नहीं बन पाएगी. Okay, if that man doesn't fear God, he cannot be a good husband. अगर वो पुरुष परमेश्वर का भय नहीं मानता तो वो एक अच्छा पति नहीं बन पाएगा. And if you don't fear God, you destined to be single. You never get married and spoil the other person's life. और अगर आप परमेश्वर का भय नहीं मानते तो ये आपके लिए अच्छा होगा, बेहतर होगा कि आप कभी विवाह न करें, आप अकेले ही रहे, दूसरे की जिंदगी बर्बाद न करें. You don't have the fear of God. आपके मन में परमेश्वर का भय ही Now, नहीं. what is fear of God? और परमेश्वर का भय मानना ये क्या होता है? Okay, I'll tell you this. मैं आपको बताता हूं. The fear of God, if you see, it's the two sides of the same coin. और एक ही सिक्के का दोनों भाग है. Okay, what is fear of God? परमेश्वर का भय मानना क्या It's a होता very है? spiritual term. और ये एक आत्मिक शब्द है. The other side is humility. और दूसरा भाग है नम्रता. The other side is humility. और दूसरा भाग है नम्रता. See, I'll tell you, the first thing you will check in a man or a woman is humility. पहली बात जो आपको एक आदमी या औरत में जांचना है वो ये है कि क्या वो नम्र है. You know what is many people, you know what is humility? क्या आप जानते हो नम्रता क्या होता है? Walking like this. और ऐसे झुक के क्या चलना? Huh? Is this humility? क्या ये नम्रता होता Yeah, है? नहीं. Humility is the opposite of arrogance. और नम्रता ये घमंड के साथ चलना, इसके वो विरोधार्थी शब्द है. अरे everybody is humble. तुम्हारा बॉस के नीचे तुम कैसा है? घमंड है क्या? वो मार देगा तुमको. Please understand. We know where to be humble, where to keep quiet, where to talk. हम सब जानते हैं कि नम्र कहां बनना पड़ता है, कहीं कहां नहीं चलते हैं हम नम्र. Don't see the humility of a human being in the church. और ये कलीसिया में किस प्रकार वो व्यवहार कर रहा है इसे आप नम्र ना समझे. किधर देखने का उधर जाके देखने का. हाँ, किधर ह्यूमिलिटी देखने का उधर ही वो they will exhibit their arrogance. करेक्ट. She will finish you off. वो आपको खत्म कर देगी. He will finish you off. Because he has no fear of God. और उसका कोई परमेश्वर का भय वो मानता ही नहीं. However good he is, however good she is, चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो. such a girl will be a shame for you. और ऐसी एक लड़की आपके लिए निंदाजनक बनेगी. Yes. Such a man will become a shame for you. ऐसा एक आदमी आपके लिए निंदा का कारण बनेगा. Humility, नम्रता, fear of God. परमेश्वर का भय मानना. You marry an arrogant girl, you will pay for that all your life, every day. अगर आप एक घमंडी स्त्री से साथ विवाह करते हो तो आपकी सारी जिंदगी इसका दाम आपको चुकाना पड़ेगा. पड़ेगा. सारा संसार तुमको देखेगा, रोड में मारेगी तुमको, सारा दुनिया देखेगा तुमको. तुम मिस्टेक किया ना,
Very, 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 very important. I want to warn all the boys. और जितने भी लड़के हैं आपको मैं चेतावनी देना I चाहता want to हूँ, warn all the girls. जितनी भी लड़कियां यहाँ पर है आपको चेतावनी मैं देना चाहता The हूँ। number one thing. What is सबसे the number पहला one thing you गुण will जो see आपको in a ढूंढना girl? है, क्या ये गुण है? Arrogance. क्या वो घमंडी है? If she talks one word in arrogance, you cross her. अगर एक भी शब्द वो घमंड के साथ बात करती है तो उस पे आप क्रॉस कर दे। You cross her. It's better you cross her now than you divorce her later. और अभी ही उसे निकाल दे अपने जीवन से, ना कि आप आगे बढ़कर उसे आपको I am तलाक not देना पड़े। joking. I am not joking. मैं कोई मजाक I नहीं am कर रहा हूँ, talking out of lot of pain, which I मैं have. बहुत दर्द I के have साथ कई ये seen. बातें कहता हूँ। I know how many people are suffering. मैं जानता हूँ Silently. कितने लोग बहुत शांतिपूर्वक वो पीड़ा सह रहे हैं। Arrogance. ये घमंडी। Yeah. One day, one old man came to my house. His wife said, "He leave the house." एक दिन एक बुजुर्ग व्यक्ति मेरे घर पर आया, In a उसकी fight, पत्नी ने because कहा, it was her house. And that one day I buried that old man. और एक दिन मैंने उसको गार्ड भी देना पड़ा। Please understand this. इस बात को समझे, Don't die before your time. आपके समय से पहले आप मर न Before you जाएं, make decision, you choose what you are going to live with. और आपको निर्णय लेने से पहले आप चुनाव करें कि आप किसको चुन रहे हो। You choose by what? By face and beauty and money and I am a father. मैं एक पिता हूं, If you cry, I am unhappy. जब आप रोते हो तो मुझे खुशी नहीं I मिलती। don't want to see you cry. मैं नहीं देखना चाहता कि आप रो रहे हो। I bless you. मैं आपको आशीष I रोज pray देता for हूँ, you. मैं रोज आपके लिए I प्रार्थना want करता to see हूँ। you successful. मैं देखना चाहता हूँ कि आपके जीवन में आप उन्नति पाएं। That's it. ये बात सही है। The first thing सबसे पहली बात is fear of God. परमेश्वर का भय मानना। Psalm 25 verse 12. भजन संहिता 25वां All अध्याय, the women in the house listen to this carefully. और सारी Psalm स्त्रियां जो 25, घर में 12. हैं, 25वां अध्याय 12वां वचन। Who is the man that fears the Lord? Who is the man who fears the Lord? वो कौन है, कौन सा आदमी है, पुरुष है जो परमेश्वर का भय मानता है। Unmarried girls, you should marry this guy. और जो अविवाहित लड़कियां हैं, आपको इसी व्यक्ति से You विवाह marry करना this है। girl. या This man you marry. इसी आदमी से आप विवाह Okay? करें। Unmarried na? आपका विवाह नहीं हुआ ना, You pray that Lord, I will marry a man like this. आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर ऐसे ही एक व्यक्ति के साथ मेरा विवाह Even हो। if this man is not looking handsome, still I will marry him. और चाहे यह आदमी बहुत सुंदर नहीं दिख रहा हो, फिर भी मैं उसी से विवाह करूंगा, Huh? करूंगी। This man fears the Lord. ये आदमी पुरुष जो है, So ये what परमेश्वर are का the भय blessing मानता this है। guy has? कि कैसी आशीष उसके जीवन में आता है। Okay? God will teach him the way he chooses. परमेश्वर उसको उसी मार्ग पर चलाता है God जिसे will वो teach चुनता him. है। परमेश्वर उसे सिखाता उसका है। टीचर कौन होगा? उसका शिक्षक कौन God है? होगा. Oh, what a privilege! What a privilege! You marry a man परमेश्वर। who is taught by God Himself. आप ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह करें जिसका शिक्षण परमेश्वर से स्वयं आता है, He himself shall dwell in prosperity. और वो हमेशा कुशलता के साथ वो जिएगा। He will be prosperous. वो हमेशा कुशल रहेगा, Prosperous. खुशल ही Means, रहेगा। you know, overflowing in his life. और उसके जीवन में हर बातें उमड़ कर बह रहा है। Yes. Prosperity will be upon him. कुशलता उस पर बनी रहेगी, Okay, and his descendants shall inherit the earth. और उसके वंश पृथ्वी पर अधिकारी बनेंगे। माने, if you marry him, your children will inherit the earth. उसका अर्थ यह है कि अगर आपका विवाह उनके साथ होता है तो आपके संतान जो है वो पृथ्वी पर राज्य करेंगे। If you marry this man, अगर इस आदमी से आपका शादी होता है, okay, the babies you are going to produce, जिन बच्चों का आप जन्म देने वाले हो, they are going to inherit all the malls of the city. और इस शहर के जितने भी मॉल्स है उसमें विरासत में वो I'm पाएंगे। trying to use my little intelligence and imagination to say this in a colorful way. और ये थोड़ी सी But बुद्धि, mine is थोड़ा so less. कल्पना में मैं आपको कल्पना कर मैं आपको बता What रहा I'm हूँ saying ये is बात। so less, and what is said is so big. और जो बातें मैं विवरण कर रहा हूँ वो बहुत कम है, लेकिन जो बातें लिखी गई है वो बहुत अधिक है। And the secret of the Lord is with those who fear Him,
and he will show them his covenant. और परमेश्वर के भेद को वही जानता है और उससे वो डरते हैं और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करता है. So a man, when he fears God, he has lot of blessing. और जब एक मनुष्य परमेश्वर का भय मानता है तो बहुत अधिक आशीष उसके जीवन में आता है. Girls, what are you praying? लड़की, आप क्या What are you प्रार्थना कर रहे हैं? Huh? Pray like this. इस प्रकार आप प्रार्थना हाँ? करें. Women of God, you pray like this. और परमेश्वर की I दासी आप wish इस all प्रकार of you प्रार्थना get a करें. man like this. मेरी यही आशा है आप सभी को ऐसा ही एक पुरुष मिले Huh? And you are happy. और आप हमेशा खुश रहे. Okay? The other side. Let's go to Proverbs 31:29. नीति वचन 31वां अध्याय उसका 29वां वचन. 31:29. Many daughters have done well, but you excel them all. Charm is deceitful, beauty is passing, but a woman who fears the Lord, she shall be praised. बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं परंतु तू उन सबों में श्रेष्ठ है. शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है परंतु जो स्त्री परमेश्वर का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी. Please understand इन this. बातों को आप समझे. Only when a girl fears God, she will be praised. जब कोई स्त्री परमेश्वर का भय मानती है उसी स्त्री का प्रशंसा किया जाएगा. See, women, it is true, whatever is true for man is also true for woman. जो भी बातें एक पुरुष के लिए हकीकत में होती है वही बातें स्त्री के लिए भी हकीकत There की is no होती है. difference. कोई बदलाव इनमें कोई अलग God नहीं है. has kept all conditions same for a man and a woman. परमेश्वर ने पुरुष और स्त्री के लिए सारी बातों को तो एक ही समान रखा है. The fear of God. परमेश्वर का भय मानना. Whether now the young boys, जो now जवान which लड़के girl हैं, you need to marry? आपको कैसी एक लड़की से आपका विवाह होना चाहिए Huh? What is your criteria? to और marry? इसके लिए आप क्या किन बातों को आप देखते हो. A woman who will fear God. एक ऐसी स्त्री जो परमेश्वर का भय मानती हो. Huh? A woman who will fear God. ऐसी एक स्त्री जो परमेश्वर का भय मानती हो. A woman who can pray, who can be violent in prayer. और ऐसी एक स्त्री जो प्रार्थना में एक योद्धा के समान है. Many husbands, they become not very good businessmen. They are not having any growth in their career. कई सारे पुरुष ऐसे होते हैं जो विवाहित होने के पश्चात भी वो कभी भी अपने जीवन में कुछ भी श्रेष्ठ काम नहीं कर पाते, आगे नहीं बढ़ पाते. That very talented men. और उनमें बहुत सारे अधिक गुण हैं. But still they don't reach that place. लेकिन फिर भी वो उस स्थान पर पहुंच नहीं पाते. The truth of the matter is, his हकीकत की wife बात has यह है, nothing to do with prayer. और ये जो स्त्री है उसकी पत्नी है उसको प्रार्थना के साथ उसका कोई मेल ही नहीं है. If the wife only sits and prays night and day for that husband, he will become the prime minister of this nation. अगर वो पत्नी अगर निरंतर प्रार्थना करती है अपने पति के लिए तो वो व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री भी बन सकता है. He can become, वो बन सकता है because he will have so much of clarity in the spirit world क्योंकि that no hindrance will be there. आत्मिक क्षेत्र में उसको सारी बातें इतना साफ दिखाई देगा कि कोई भी उससे रोक नहीं पाएगा. Women who don't pray, जो एक स्त्री जो प्रार्थना नहीं करती all their husbands are in deep trouble. और उनके सारे जो पति हैं वो सब बहुत परेशानी में हैं. All of them are in mediocre life. और वो बहुत ही साधारण से जीवन बिता रहे हैं. They get involved with all rubbish in their और lives. अपने जीवन में बहुत सारे फालतू चीजों में वो जुड़े हुए हैं. Because the woman has nothing to do with prayer. क्योंकि वो स्त्री प्रार्थना में उसका कोई लेन देन नहीं है. You should marry a girl who will stand in the gap for you. और आपको ऐसी एक स्त्री से प्रार्थना करना के साथ विवाह करना है जो प्रार्थना में बनी हुई हो. Please understand these things. इन बातों को आप समझे. As a partner, you will go to great heights. और एक जोड़ीदार बनने के नाते आप बहुत ऊंचाई तक पहुंच सकते हो. Yes. Let's go further. आगे हम बढ़ेंगे. Proverbs 19:14. नीति वचन 19वां अध्याय 14वां वचन. Proverbs 19:14. नीति वचन 19:14. Houses and riches are an inheritance from fathers, but a prudent wife is from the Lord. घर और धन पुरखों के भाग में आता है परंतु बुद्धिमती पत्नी परमेश्वर ही से मिलती है. पत्नी कैसा होना चाहिए?
prudent, prudent, बुद्धिमती, prudent. बुद्धिमती। Huh? Girls, you लड़कियां। need to be लड़कियों आपको Prudent. कैसे बनना है? बुद्धिमती बनना है। okay. Proverbs 14:1. नीति वचन 14वां अध्याय उसका पहला 14:1. The wise woman builds her house. Foolish destroys her house. हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, पर मूढ़ स्त्री उसको अपने ही हाथों से ढा देती है। Huh? Matthew 7:24. मत्ती 7:24। Now, the wise man builds his house on the rock. बुद्धिमान पुरुष अपना घर चट्टान पर बनाता है। Not all can. सारे ऐसा नहीं कर पाते हैं। Not all can marry. सारे लोग ऐसे विवाह If आपसे you are नहीं कर 25 years of age, it is not that you should marry. पाएंगे। अगर ऐसा नहीं है कि आपका उम्र 25 साल हो चुका है तो आपकी शादी हो जानी चाहिए। Huh? Many people they think once they come to 25 they should marry. बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अब तो 25 साल हो चुके हैं, अब मुझे शादी कर लेना चाहिए। Huh? If you are foolish and you marry, you may destroy what is existing. अगर आप मूर्ख हो और आप विवाह करते हो तो जो कुछ बना बनाया है उसी को भी आप पूरा नाश कर सकते हैं। But if you are wise, then you may build the house. लेकिन अगर आप ज्ञानी हो, बुद्धिमान हो तो आपको विवाह कर लेना चाहिए। Okay? What is prudence? और ये बुद्धिमती होना, इसका अर्थ क्या है? What is prudence? इसका अर्थ क्या बनता है? Prudent wife. एक बुद्धिमती पत्नी। Huh? What is prudent? ये बुद्धिमती पत्नी का अर्थ क्या है? Huh? Proverbs 16:21 says, नीति वचन 16-21वां वचन the देखेंगे। wise in heart is called as prudent. जिसके हृदय में बुद्धि ज्ञान होता है वही बुद्धिमान कहलाता है। Huh? Who is prudent? और कौन ऐसे बुद्धिमती कहलाता है? Wise in? जो अपने हृदय में ऐसे ज्ञान की बातें रखता है। Yes. Wise in heart. Say. आप ये कहे Wise जिसके हृदय in में heart. ज्ञान हो Is called as prudent. वही बुद्धिमान कहलाता है। So young people should be wise in their heart. तो जवान लोग जो है अपने हृदय में आप ज्ञान रखे। Huh? Wise. हृदय में Prudent. ज्ञान What रखे। is prudent? और ये बुद्धिमान होना क्या होता है? What is prudent? ये Wise बुद्धिमान in? होना क्या होता है? Wise हृदय in में ज्ञान रखना। Okay? So you be wise in heart. Hey, are you with me? Are you understanding क्या आप something? समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? Yeah. It's for the, you need to know all these things before you venture into these things. और इन बातों में बढ़ने से पहले आपको ये बातों को जानना बहुत जरूरी है। Huh? Don't look at the hairstyle. आप उनके बाल Oh किस my तरीके God, से they है look like angels. It looks like spring. Very beautiful. और बहुत They look सुंदर वो like दिख रहे हैं। fairies, you know, वो- from the fairy world, Barbie world, a fairy. वो स्वर्गदूतों के But the समान Bible दिखते हैं, says, लेकिन the wise, wise. Tell your neighbor, you लेकिन be बाइबल wise. कहता है कि अपने हृदय में वो ज्ञानी बने, बुद्धिमान बने। So when you see a Barbie doll, तो जब आप एक बारबी डॉल को देखते हो you look at her heart. इसका heart कैसा होगा? तो आप उनके हृदय को पहले देखेंगे, इसका हाँ? हृदय कैसा है। Heart में क्या होगा? हाँ। Heart के अंदर क्या है? Huh? Don't be influenced by the Barbie looks. और उनकी सुंदरता को देख के आप प्रभावित ना बने। What is a prudence? What is prudence? और बुद्धिमान बनना ये क्या है? What is prudence? बुद्धिमान बनना क्या है? Prudent wife is from the Lord. I will add to it, even prudent husband is from the Lord. और बुद्धिमती पत्नी का होना ये परमेश्वर की ओर से है। इसके साथ मैं जोड़ूंगा कि बुद्धिमान पति का होना ये भी परमेश्वर की ओर से ही होता है। Proverbs 27:12. 12वां वचन देखिए। A prudent man foresees evil. Prudent man has a special ability. Prudent people have special ability. और ये जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसकी एक खास क्षमता होता है, वो विपत्ति को आते ही देख लेता है। विपत्ति आने के पहले देख लेता है। Prudent woman. और एक She बुद्धिमती knows स्त्री there is a trouble coming to the house. वो जानती है कि एक बड़ी परेशानी घर में आ रहा है। Prudent man knows
After 1 month, there is going to be a trouble coming into my house. और ऐसी बुद्धिमती स्त्री जानती है कि 1 महीने के बाद एक बड़ा परेशानी मेरे घर में आने वाला है। Prudence is the ability to see into the future. और बुद्धिमान बनना उसके ये ऐसी एक क्षमता है जो भविष्य में देख सकता है। You marry a dumb girl or a dumb man, you will be eaten up. एक by the- मूर्ख by- पुरुष या स्त्री से आप शादी करते हो तो आपको कोई निगल लेगा। They are not prudent people. वो बुद्धिमान व्यक्ति They are नहीं है, sleeping people. वो सोते हुए लोग हैं। Such people can never become a blessing. और ऐसे लोग कभी भी आशीष के कारण नहीं बनते, A prudent foresees. He doesn't see, he foresees. क्योंकि एक बुद्धिमान व्यक्ति केवल देखता नहीं बल्कि आने से पहले ही देख लेता है। He will know there is something wrong going to happen in my life. I will pray today. Today I am not going to the office. I will put chutti. Whole day I pray and pray and pray and pray and I release. और वो जान लेता है कि एक बड़ी परेशानी आ रही है, मैं अब आज दफ्तर नहीं जाने वाला, पूरा दिन बैठ के प्रार्थना करने वाला है। वो प्रार्थना करता है निरंतर और उससे स्वतंत्र हो A जाता है। prudent man foresees. एक बुद्धिमान व्यक्ति वो पहले से ही देख लेता A है। prudent woman foresees. एक बुद्धिमान स्त्री पहले से ही देख लेती है। Today many of us we don't have an ability to foresee. आज We हमें से कई आने के बाद फोन करते हैं, अरे पास अभी मैं क्या करूं? और कई सारे लोग आज पहले से वो देख नहीं पाते, जब परेशानी आ जाती है तब वो चिल्लाने लगते कि पासवान अब क्या करा जाए। A prudent man foresees. एक बुद्धिमान व्यक्ति वो पहले से ही देख लेता है। Fathers and mothers, what have you made your daughters into? माता और पिता जो यहाँ पर बैठे हैं, आपने अपने बेटियों को क्या बना दिया है? Huh? Fathers and mothers, what are your sons? Who are your sons? और माता और पिता जो यहाँ पे बैठे हैं, आपने अपने बेटों को क्या बना दिया है? वो कौन है? What can you tell about your children? आप अपने बच्चों के बारे में क्या कह सकते That हो? fellow has the ability to foresee. क्या उसमें वो क्षमता है कि वो पहले से ही देख ले? Huh? If you have not made your son to foresee, he can be hurt by evil which is there in the world. अगर आपने अपने बेटे को नहीं सिखाया कैसे पहले से ही विपत्ति को देख ले, तो वो इस दुनिया में दुष्टता का वो पीड़ित बन जाएगा। After you die and go up, what are your children going to do? आपके मृत्यु के पश्चात आपके बच्चों का क्या होगा? Everyone need to tune ourselves according to the word of God. हमें से हर एक को परमेश्वर के वचन के आधार पर ही हमें चलना है। You understand who is a prudent man? क्या आप समझ पाए हो कि एक बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? Now tell me, God gives a prudent wife. एक बुद्धिमान How परमेश्वर many ही wives बुद्धिमान here? स्त्री को देता है। कितनी बुद्धिमान Wives, prudent है? पत्नियां बुद्धिमान यहाँ पर है? क्या आप Prudent बुद्धिमान है? हो? आज सो रही है? Prudent wives. कितनी पत्नियां यहाँ पर है जो बुद्धिमान है? Yeah, you should be prudent. आपको बुद्धिमान बनना You है। should tell your husband, आपके पति से आपको कहना है, darling, I think we need to pray. आपको अपने पति से कहना है कि हाँ मुझे लगता है कि हमें प्रार्थना करना है। Very important. ये बहुत महत्वपूर्ण है। One day I brought one guy in my house. एक दिन मैंने एक आदमी को अपने घर पर मैं लेकर आया, After he left, my wife said, he is not a good guy. और जैसे ही वो बातों के बाद वो जब घर छोड़कर चले गए, तब मेरी पत्नी ने तुरंत आकर मुझसे कहा ये आदमी ठीक नहीं है। After 3 years, I understood he is not a good guy. और 3 साल के बाद मुझे समझ में आया कि वो अच्छा व्यक्ति नहीं है। Prudent people. बुद्धिमान लोग। One day I took my friend to a restaurant. एक दिन मैंने अपने मित्र को एक रेस्टोरेंट में मैं लेके गया। When we ate food and came out, he told me, don't come to this place again. उसने मुझसे तभी कहा इस जगह पे फिर से मत लौटना। Prudent people. बुद्धिमान लोग They foresee. They see something else. वो पहले से ही देख लेते हैं, वो कुछ और बातों को देख लेते हैं। You need prudent. You need a spouse who is prudent, आपको ऐसे जोड़ीदार की जरूरत है जो बुद्धिमान है, who can help you in your life. वो आपको अपने जीवन में आपकी मदद कर सकते हैं। Amos 5:13. एमोस 5:13। Amos 5:13. एमोस 5:13। Therefore the prudent keep silent at that time, for it is an evil time. इस कारण जो बुद्धिमान हो वो ऐसे समय चुप रहे क्योंकि समय बुरा है। Some people they cannot keep quiet. कुछ लोग हैं जो चुप बैठ ही नहीं सकते। मैं पूछेगा. Dangerous people they are. बहुत ही खतरनाक लोग हैं वो।
Prudent people know when to keep quiet. बुद्धिमान लोग जानते हैं कि कभी उन्हें चुप रहना है। Huh? Many husbands are telling the wife, hey, shut up now, shut up. Daily he is telling night and day, shut up only. कई पति अपने पत्नियों को कह रहे हैं, अरे तुम चुप बैठो, पूरे दिन वो यही कह रहे हैं, तुम चुप बैठो। Don't suffer in your life. अपने जीवन में ऐसे पीड़ा मत सहो। Because prudent people know when to open their mouth. बुद्धिमान लोग जानते हैं कि अपना मुंह कब खोलना है। Huh? Unmarried. How many unmarried? कितने लोग अविवाहित हैं यहाँ पर? Huh? Don't make life very interesting. Huh? आप अपने जीवन को बहुत ऐसे तुम्हारा रुचात्मक मत मेजर बना लो। प्रॉब्लम घर के अंदर होगा, घर के में अगर कुछ नहीं होगा तुम्हारा, अंदर का अंदर ही खत्म हो जाएगा तुम्हारा। Many people are finished inside the house only. बहुत से लोग अपने घर में ही उनका बाहर खात्मा हो के जाता क्या है। करेगा, वो घर में कुछ नहीं है। Have you seen people coming in the train and they are fighting in the train, the cats and dogs? Have you seen people? क्या आपने ऐसे लोगों को देखा है जो ट्रेन में Why are they जाते हैं, fighting वो in the लड़ाई train? झगड़ा कर रहे हैं, वो क्यों लड़ रहे हैं? Tell me why are they fighting? आप मुझे बताइए क्यों लड़ रहे हो? नहीं नहीं, सुबह उठते ही शुरू हुआ है। उधर मार खाया वो आदमी। My friends, don't make life interesting. अपने जिंदगी को इतना रुचात्मक मत बनाएं। Adventurous life मत बना। Peaceful life. Like today we sang na, peace like a river. Peace like a रिवर river. Have you seen river? I have taken bath in a river. रिवर में टेक बात करना बहुत डेंजरस है, क्योंकि रिवर इज गोइंग। और जो नदी है वो तो बह रहा है। You have to take bath only in the bank, where there are stones, where they have, little diverted for, so the water is flowing slowly. तो नदी के भीतर बीचों बीच जाकर आप नहा नहीं सकते, उसके किनारे पे खड़े रहकर जब पत्थरीले You जगह can't take bath in a river. You will go to Pune. By the time you apply soap, you are in. Peace like a river. और शांति जो एक नदी के समान हो। Your family should be peace like a river. आपका परिवार जो है वो ऐसी शांति हो एक नदी के समान। Peace like a river. That is what God wanted. और यही परमेश्वर चाहता है। Even if the person doesn't look good, so what? और शायद वो व्यक्ति बहुत सुंदर नहीं दिखता, तो इसमें क्या हुआ? He doesn't earn good, so what? वो बहुत अधिक नहीं कमा सकता, लेकिन उसमें क्या हुआ? Peace like a river. लेकिन शांति एक नदी के समान। Peace like a river. शांति एक नदी के समान। How sweet, how beautiful. ये कितना मधुर है, कितना सुंदर है। Peace like a river. शांति एक नदी के समान। Jesus is the Prince of Peace. यीशु शांति का राजकुमार है। He is a Prince of Peace. वो शांति का राजकुमार है। Prudence. और ऐसे बुद्धिमान होना। Proverbs 12:16. नीति वचन 12 उसका 16वां वचन। A fool's wrath is known at once. A prudent man covers shame. मूढ़ उसके क्रोध को उसी दिन प्रकट कर देता है, परंतु चतुर अपमान को छिपा देता है। What is prudence? ये बुद्धिमान बनना ये क्या होता है? Prudence covers the shame, और बुद्धिमान व्यक्ति उसके अपमान को छुपा देता है। not exposes the shame. और जो अपमानजनक बातें हैं उसको वो सबके सामने नहीं ले जाता। Today, sometimes now, when we get angry, we talk ill of so many things. So many things. कई बार ऐसे होता है जब आप गुस्से में होते हो, आप दूसरे व्यक्ति के बारे में कई सारी बातें आप कहने लग जाते हैं Which we should not talk. जो हमें बातें नहीं करनी हो। A prudent wife will never ever talk. एक बुद्धिमती पत्नी वो कभी भी ऐसी बातें नहीं She करती, will shame the husband. ऐसी बातें जो अपने पति को शर्मिंदगी महसूस हो। A prudent husband will not shame his wife. एक बुद्धिमान पति अपने पत्नी का कभी भी ऐसे उसको शर्मिंदा महसूस नहीं करवाएगा। They are very careful. वो बहुत संभल कर रहते हैं। Because there are certain
things which we should not talk about. क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती है जो कभी हमें बात नहीं करना होता है। Proverbs 13:16. नीति वचन 13वां अध्याय A 16वां prudent वचन। man acts with knowledge. Acts with knowledge. और बुद्धिमान व्यक्ति वो बुद्धि के साथ काम करता है। You should have a thorough knowledge of everything. You can't just talk anything you want. और कई सारे विषयों के बारे में आपको अच्छी बुद्धि होनी चाहिए। Many आप people ऐसी have बातें ना करें। no big knowledge about things. और कई लोगों के पास ऐसे कुछ विशेष ज्ञान नहीं होता है कई विषयों के बारे में। They just talk like that without knowledge. They talk. बिना ज्ञान के वो केवल ऐसी बातें करते रहते हैं। Prudence, very important. Prudence is prudent man, prudent woman. These are more important. for a happy बुद्धिमान marriage. पुरुष या बुद्धिमती स्त्री ये अधिक महत्वपूर्ण है। Happy marriage is not luck. और एक खुशहाल वैवाहिक जीवन ये कोई सौभाग्य से नहीं मिलता है। Happy marriage starts with you. और एक खुशहाल वैवाहिक जीवन ये आप ही से इसकी शुरुआत होती है। It starts with you. ये आप ही से इसकी शुरुआत होती है। Many people cannot be corrected. कई सारे लोगों को आप उन्हें सही बना ही नहीं सकते। You can't correct them. आप उनको सही कर ही नहीं सकते। If you correct them, they will run out of the house. अगर आप उन्हें सही करते हो तो आपके घर से वो भाग निकल पड़ते हैं। I know girls and boys. मैं कई सारे लड़कियों और लड़कों को ऐसे जानता हूँ। When anybody corrects them, they run out of the house. कोई भी अगर उन्हें सही करता है तो वो घर से भाग जाते हैं। When they come to church, जब वो कलीसिया आते हैं we correct them. हम उन्हें सही करते हैं, They run out of the church. वो कलीसिया से भी भाग जाते हैं। They won't stick. वो नहीं रुकते। How can you marry such a person? आप ऐसे व्यक्ति के साथ कैसे विवाह कर सकते हो? Tomorrow you correct them, they are finished. कल आप उन्हें Divorce. सही करते हो तो फिर खत्म, फिर वो आपको तलाक दे देते हैं। You can't correct them. आप उन्हें सही कर ही नहीं पाते। If you correct them, they will cry. अगर आप उन्हें सही करते हो तो वो रोना शुरू करते हैं। I had one many years before. There was one very sweet lady in the leadership. और Leadership. कई सालों पहले की बात है, एक अच्छी स्त्री थी, वो अगुवाई की टीम में, She is a leader. वो एक अगुवा थी। If you correct her now, आप अगर उन्हें सही करते हो she will cry. वो रोना शुरू कर देते। Make a big noise. Then we all will feel guilty. Okay, sister, don't cry, don't cry. In that, फिर हमें wipe पूरा- your eyes. और फिर हमें बुरा लगता था, आप रोइए नहीं, ये लो आपका आंसू पोंछ लो। It's manipulation. और वो She was controlling the वो leaders. हमें नियंत्रित करती थी। Many people cannot be corrected. कई लोगों को आप सही कर ही नहीं पाते। Many men cannot be corrected. कई सारे पुरुष ऐसे हैं जिनको आप If सही you कर ही नहीं correct पाओगे। them now, they get very angry. Hey, अगर आप they get very, very upset. अगर आप उन्हें सही करते हो तो बहुत गुस्से में आ जाते हैं। No. How can you be a husband or a wife? आप ऐसे एक पति या पत्नी कैसे बन पाओगे? You will be a misfit. आप वहां ठीक से जुड़ नहीं पाओगे। Yes. So please, you have to understand. आपको सचमुच समझना है, We all are humans. हम सब इंसान हैं We can be corrected. और हमें सही किया जा सकता है। No place you actually become perfect. You become perfect like the Father. आप one day. पिता के समान, स्वर्गीय पिता के समान हम उत्तम बनते हैं एक दिन।